پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قانون کی عملداری کے لیے کام کیا ہے. ہم نے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ بھی دیکھا, ہم نے جنرل مشرف کا ماشاء اللہ بھی دیکھا, لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے لے کر آج دن تک بلاول صاحب بھی اور آصف زرداری صاحب جو ہے ہمیشہ سب نے پاسداری کی ہے آئین اور قانون کی. ہمیں عوام کو چاہیے کہ وہ سینس آف پارٹیسپیشن قائم کریں ہر چیز میں کہ یہ میری ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال. میں ہوں احسن شہزاد. ناظرین, آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں محمد سلیم بھٹی صاحب اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, جن سے آپ بات کریں گے. بھٹی صاحب مجھے بتائیں کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم مرات نہیں لیں گے, پروٹوکول نہیں لیں گے, گاڑیاں نہیں لیں گے, بعد میں سارا کچھ ان کو مل بھی جاتا ہے کہ خالی باتیں پریس کانفرنس تک کی ہوتی ہیں کہ یہ عمل بھی کریں گے اس کے اوپر. شکریہ احسن صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام سے مخاطب ہونے کا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس بارے میں واضح کر سکوں. دیکھیے, ہمارے سابق جو وزیر خارجہ تھے, ہمارے چیئرمین مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور اس سے پیشتر مطلب جو آصف زرداری صاحب کی آپ نے بات کی, تو آصف زرداری صاحب پہلے بھی اس ملک کے 5 سال تک صدر پاکستان رہے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت بھی انہوں نے کوئی تنخواہ نہیں لی تھی اور کوئی اس قسم کی مطلب جو ہے ایکسٹرا چیزیں نہیں لی تھی. تو باقی اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مراد جو ہے کوئی کتنی لیتا تھا, کیا نہیں لیتا تھا, مراد میں کیا شامل تھا. ہمارے پاس صدر پاکستان کے ساتھ ساتھ ایسے گورنرز بھی گزرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ ادوار میں, جیسے سلمان تاثیر صاحب تھے یا مطلب مخدوم احمد محمود صاحب تھے, کہ وہ گورنر ہاؤس میں رہتے بھی کم تھے اور گورنر ہاؤس کی سہولیات سے استفادہ بھی کم کرتے تھے. ایون کہ سلمان تاثیر صاحب جتنے بھی وہاں پر ضیافتیں ہوتی تھیں وہ میرے علم کے مطابق وہ تمام کا خرچہ خود پے کرتے تھے. پارٹی کی فنکشن میٹنگ وہ جگہ ضرور استعمال کرتے تھے. اسی طرح مخدوم احمد محمود صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جنوبی پنجاب کے آج کل بھی صدر ہیں, وہ بھی جس وقت گورنر پنجاب تھے تو ان کے گھر سے گاڑی جو ہے چائے کا اور اس قسم کی جو کنفیکشنری ہے اس کا سامان لے کر گھر سے آتی تھی کہ مہمانوں کے لیے بسکٹ اور کافی وغیرہ اور دودھ وغیرہ جو استعمال ہوگا وہ ان کا ذاتی استعمال ہوگا. تو یہ بات بڑی واضح ہے. اور جہاں تک مطلب اس چیز کو چیلنج کرنے کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مراد کے حوالے سے صرف خالی باتوں پر بیان بازی کا نام لیتی ہے, تو آپ کے سامنے رائٹ آف انفارمیشن کا قانون موجود ہے, آپ چیک کریں. مطلب اگر ہم غلطی پر ہیں تو آپ ہماری اصلاح کریں. سر دیکھیں نا, قانون کو تو مانتے کوئی نہیں نا. آپ دیکھ لیں قانون ہوتا تو یہ حالات ہوتے ہیں ملک کے. نہیں, قانون ہے الحمدللہ, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قانون کی عملداری کے لیے کام کیا ہے, آئین کی سپرمیسی کے لیے مطلب کوشش کی ہے, جدوجہد کی ہے. ہم نے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ بھی دیکھا, ہم نے جنرل مشرف کا ماشاء اللہ بھی دیکھا, لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے لے کر آج دن تک بلاول صاحب بھی اور آصف زرداری صاحب بھی جو ہے ہمیشہ سب نے پاسداری کی ہے آئین اور قانون کی. آپ یہ دیکھیں کہ عید کے دنوں میں مطلب رمضان شریف کے دنوں میں رات کو آدھی رات کو فریال بی بی کو گھر سے اٹھا کے جیل میں لے جانا, ہاسپٹل سے اٹھا کے, تو وہ اور پیپلز پارٹی نے کبھی کہیں کوئی ایسی مزاحمت والی حرکت نہیں کی کہ جس سے یہ واضح ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی قانون کو نہیں مانتی. حالانکہ وہ بھی ایک غیر آئینی کام تھا کہ آدھی رات کو آپ ہاسپٹل سے ایک مریض کو اٹھا کے جیل میں لے کر جا رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی سر دیکھیں نا, عوام کو کیسے پتہ چلے گا سر, عوام کو کیسے پتہ, عوام تو مانتی نہیں ہے. میں باہر گیا, مائک اٹھایا, میں نے لوگوں سے پوچھا یہ جی سوالات ہیں ہمارے, اس کا جواب دیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑے گا, وہ یہاں سے کہتے ہیں جی یہاں سے سیلری نہیں لیں گے, وہاں سے پورا کر لیتے ہیں دوسری سائڈ سے. ہم کیسے مانے کہ نہیں لیں گے؟ اصل بات یہی ہے, عوام نہیں مانتی. عوام کیوں نہیں مانتی حسن صاحب؟ عوام میں سینس آف پارٹیسپیشن نہیں ہے. بدقسمتی سے عوام میں جو ہے وہ سینس آف اگنورنس وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے. کوئی کسی چیز کے اوپر اپنی حق ملکیت نہیں جتاتا. حق ملکیت سے مراد کہ یہ پاکستان میرا ہے, یہ پاکستان کی جو املاک ہیں, یہ ریڈیو پاکستان ہے, یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے, یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ میرا ہے, یہ میرے ٹیکس کے پیسوں سے بنا ہوا ہے. ہمیں حق جو اپنائیت ہے یا مطلب سینس آف پارٹیسپیشن ہے کہ یہ چیز میری ہے, وہ ختم ہونے کے ساتھ یہ چیز ہوگی ہے مینو کی, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو سرکاری املاک ہیں, یہ تو احسن صاحب کی چیز ہے, یہ تو نواز شریف کی چیز ہے, یہ زرداری کی چیز ہے, اس کو آگ لگا دو. یہ ختم ہونا چاہیے. جب تک ہم میں عوام میں, عام آدمی میں جو اس ملک کا مزدور ہے, اس میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ یہ سڑک جس کے اوپر لکڑی رکھ کر
कुल्हाड़े के साथ काट रहा हूँ, और ये इस कुल्हाड़े के काटने से जो इसकी धमक से ये जो सड़क डैमेज हो रही है, ये सड़क मेरी है, मैंने इसकी हिफाजत करनी है। मैंने सड़क के ऊपर पानी फेंक कर इसके अंदर जो कोल है उसको डैमेज नहीं करना, ताकि ये जो सड़क है ये ख़राब ना हो, ये सड़क मेरी है। वो ये कहते हैं ये हुकूमत की सड़क है कि ये बनाएंगे खुद बनाएगी हुकूमत, आएगी ये डिपार्टमेंट आएगा खुद बनाएगा। ओ भाई, डिपार्टमेंट किसका है? हमारा है, पाकिस्तानियों का है, आवाम का है। ये मेरे और आपके टैक्सों के, आम आदमी के टैक्सों से बनता है। तो हमें आवाम को चाहिए कि वो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन कायम करें हर चीज़ में कि ये मेरी है। जब ये सब चीज़ें मेरी हो जाएंगी ना, ये हुकूमत की नहीं होंगी, रियासत की नहीं होंगी। रियासत किसकी है? रियासत भी तो मेरी है ना। ऐसे तो किसी ने नारा नहीं लगाया कि रियासत होगी माँ के जैसी। हमेशा रियासत माँ के जैसी होती है, लेकिन उसको माँ का दर्जा देने के लिए उसको माँ के फ़राइज़ भी हम औलाद को निभाने हैं कि हम इस माँ की हिफाजत करें। अगर हम इस माँ की हिफाजत नहीं करेंगे तो वही हाल होगा बदकिस्मती से जो आज पाकिस्तान की सड़कों पे, पाकिस्तान की गली मोहल्लों में, पाकिस्तान के खेल के मैदानों में, पाकिस्तान के अस्पतालों में, पाकिस्तान की तालीमी दरसगाहों में खिलवाड़ हो रहा है हर जगह पर। सिर्फ इसलिए सर देखे ना, पाकिस्तानी होने का नारा सारे लगाते हैं, सारा सियासतदान लगाते हैं। पाकिस्तान इस टाइम कर्जों में डूबा हुआ है, आपको भी पता है कितनी महंगाई है, गरीब का जीना महल हो चुका है इस टाइम। अगर एक सियासतदान कहे कि मैं कर्जा देना चाहता हूँ तो उतार सकता है कर्जा, नारा तो ना लगाए ना। फिर देखिए, जहाँ तक ये कर्जों की बात है, चाहे हम IMF से मकरूज हों या वर्ल्ड बैंक के या दुनिया के दीगर ममालिक से जो तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं उनसे हम कर्जा लेते हो पाकिस्तान एक कौमी हैसियत के तौर पर, तो ये भी जब तक हम सब लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वही बात आ जाती है सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन की। यहाँ पर एक सरकारी मुलाजिम को, आप भी एक मुलाजिम है एक इदारे में, आपकी जब सैलरी आती है तो आपकी तनख्वाह में से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है। ऐसा ही है। हत्ता कि आपको ईद पर और सालाना इंक्रीमेंट भी जो लगता है, बोनसेस जो मिलते हैं, उसके ऊपर भी आपको पहले टैक्स काट लिया जाता है, फिर उसके बाद आपको सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें, इस मुल्क के जितने प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो लॉयर्स हों, डॉक्टर्स हों या टेक्नोक्रेट्स हो गए, या हत्ता कि आम बिजनेसमैन, रेडी वाला भी, हम ये कहने की बात है कि जी रेडी वाला क्या करता है। आप ये देखें रेडी वाले की क्या इन्वेस्टमेंट है। वो 5 या 10 हज़ार रुपये की रेडी तैयार हो जाती है आज भी, चनों की या छोटी मोटी फ्रूट की या इस किस्म की बातें जो हैं, और शाम को वो 2, 3, 4 हज़ार रुपये लेके जाता है, तो वो भी लाख रुपए तनख्वाह जो है के बराबर जो कमाने वाला एक पढ़ा लिखा नौजवान है या कोई आम सफ़ेद पोश आदमी है, उसके बराबर उसकी इनकम हो जाती है, लेकिन वो टैक्स नहीं देता। तो फिर क्या होगा? टैक्स जो है मतलब वही जो चंद अफराद जो हैं उनके ऊपर टैक्स डाल दिया जाएगा, और मैं और आप जो है जो आम सफ़ेद पोश लोग हैं वो उस टैक्स की चक्की में पिस रहे होंगे और रो रहे होंगे। सर टैक्स का भी हो चुका है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अब सबको टैक्स देना पड़ेंगे, कोई दौड़ेगा नहीं टैक्स से, जो दौड़ेगा उसके कानून बैठा है, कानून देख रहा है, सारा कुछ करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या समझते हैं जो सियासतदान हैं हमारे बड़े बड़े हैं, बिजनेसमैन हैं, क्या इस बार वो टैक्स देंगे या नहीं देंगे, या हम ही देते रहेंगे सारी ज़िंदगी, जो देते आए हैं और देते रहेंगे, ऐसे ही होगा? फिर बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर के, मैं हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, मैं उनकी इस बात का खैर मकदम करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि मतलब जो है हमारे इदारे, ख़ास तौर पर जो FBR हो गया या दीगर इदारे जो हो गए जिनका काम रेवेन्यू की कलेक्शन है या उस कानून पर अमल दरामद कराना है, वो ईमानदारी के साथ लोगों से टैक्स वसूल करें। ये टैक्स देना कोई नहीं चाहता, चाहे मैं हूँ, चाहे एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सियासतदान हो या कोई जागीरदार हो, हर किसी की ख्वाहिश यही है कि वो टैक्स को जो है वो अपनी जेब में ही समेट ले, इस मुल्क को कौम के लिए कोई खर्च ना करे। लेकिन हमारे जो इदारे हैं जिनकी ड्यूटी है, जो अफसरान या जो अहलकार इस बात पर मामूर हैं कि उन्होंने टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, अगर वो ईमानदारी के साथ काम करें और पूरी बाकी जो तरक्की याफ्ता अक़वाम है जहाँ पे कोई टैक्स चोरी नहीं होती, वो इस बात पे अमल दरामद यकीनी बनाएं कि हमने, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो या किसी मिल का एक मामूली सा वर्कर मजदूर हो जो उसकी तनख्वाह में है या उसके कारोबार में है, हमने टैक्स का पैसा उससे वसूल करके कौमी ख़जाने में जमा कराना है। जब कौमी ख़जाने में सही तरीके से जमा होगा तो फिर जब मैं और आप हर बंदा टैक्स दे रहा होगा ना, तो फिर चाहे वो वज़ीर आज़म हो या इस मुल्क की आला तरीन मतलब कोई हस्ती हो, फिर हम उसके गिरबान में हाथ डाल लेंगे कि जनाब ये हमारे टैक्सों का पैसा है, आप खर्च करें इसको हमारी तालीमी दरसगाहों को बेहतर करने के लिए, आप हमारे अस्पतालों की हालत ज़ार को इम्प्रूव करने के लिए, आप ये हमारी सड़कें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गलियाँ हैं, गटर हैं, ये मसाइल जो गुर्बत दूर करने के हैं, आप इसकी तरफ खर्च करें। लेकिन हम खर्च टैक्स देते ही नहीं हैं।
जब हम टैक्स नहीं देंगे तो क्या हाल होगा? चंद मेरे जैसे आपके ऐसे लोग जो तनख्वाहदार लोग हैं वो टैक्स देंगे और उसके बाद आम लोग टैक्स नहीं देंगे, फिर वो कहते हैं सानू की टैक्स का पैसा जहां मर्जी जाता है, सर कोई चोरी करता है, खाता है, पीपल्स खाता है। पार्टी ने भी नारा लगाया, नू लीग ने भी नारा लगाया, इलेक्शन से पहले आपने देखे, और जब जलसे करते थे माइक इनके हाथ में होता था, आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। रिलीफ की बजाय महंगाई बढ़ती जा रही, क्या कहेंगे? महंगाई कंट्रोल होगी? दोनों पार्टियां नाकाम हो चुकी हैं इस टाइम आवाम को रिलीफ देने में। देखें, बात फिर वहीं आ जाती है कि सियासतदान नारे तो लगाते हैं इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी ये दावे करते हैं कि जी हम बहुत रिलीफ आवाम को दे रहे हैं, अच्छाई के काम कर रहे हैं। मतलब चाहे कोई वो अस्पतालों में दवाई मुफ्त देने की बात हो, ऑपरेशन मुफ्त करने की बात हो, जैसे इस वक्त भी आप अंदरून सिंध में देखें कि गम्बट और खैरपुर जैसे जो कम तरक्की याफ्ता पसमानदा तरीन अजला हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल दुनिया के जदीद तरीन मौजूद हैं, जहाँ पर दुनिया भर की बीमारियों का इलाज और इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर्स भी और हमारे जो इदारे हैं मशीन इक्विपमेंट के साथ कर रहे हैं। और उन हॉस्पिटल्स तक जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स भी मौजूद हैं। आप यहाँ लाहौर से उठें, आप मुल्तान से उठें, आप हैदराबाद से उठें, कहीं से उठें पूरे पाकिस्तान से, आप उन हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं और आपको सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड दिखाना है और आपने कहना है कि जी मुझे ये सर वो तो शहर की हद तक है सर, वो तो शहर की, मैंने रिसर्च मैंने की है, वहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं, आवाम बेचारे तो जलील हो रही है वहाँ पे, हॉस्पिटल ही नहीं है वहाँ पे, ना कोई स्कूल है ना कोई बैठने की जगह है। गम्बट की और खैरपुर की बात कर रहे हैं। मैं शहर जो गाँव के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो साथ साथ गाँव है, शहर में हर जगह पे हॉस्पिटल होते हैं। दुरुस्त है, हर गांव में तो ये फैसिलिटी नहीं दी जा सकती, हमारे इतने वसाइल ही नहीं है। लेकिन आप ये देखें ना कि अगर सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में चंद शहरों में मतलब जो है ये NICVD के ऑपरेशंस करने के लिए मतलब हॉस्पिटल इदारे बना चुकी है, या लीवर ट्रांसप्लांट के मतलब जो है वहाँ पे सेंटर बना चुकी है, या कैंसर डिजीज को मतलब जो है मुफ्त में, जहाँ पे लाखों नहीं करोड़ रुपए हुकूमती सतह पर खर्च होते हैं एक एक मरीज पर, वो चाहे हुकूमत कैसे भी करती है वहाँ पे सहूलतें दे रही है। तो ये अगर पूरे पाकिस्तान में ये सहूलतें दी जाए तो ये हुकूमत नहीं देनी है ना। लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत के साथ हम सब लोग जो हैं वो बदउनवानी की तरफ, करप्शन की तरफ, रिश्वत की तरफ, चोर बाजारी की तरफ, लूट मार की तरफ, मराद की तरफ, जिसका आपने शुरू में भी जिक्र किया, उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। हम कहते हैं कि 2-2 4-4 गाड़ियां हमारे घर के बाहर मुफ्त में खड़ी रहें। मैं MP MNA बन गया हूँ, मैं किसी डायरेक्टर लग गया हूँ, MNA MP है तो चले 2-4-5 साल के लिए आती हैं। हमारे आम सरकारी अफसरान जो है उनकी हालत, मतलब आप ये देख लें कि मैं मतलब अपने घर से निकलता हूँ सुबह माल रोड पर आने के लिए, मतलब अस्करी ट्रेन की तरफ से, तो रास्ते में मैं देखता हूँ कि मतलब पुलिस अफसरान के घर हैं, वहाँ 2-2 4-4 गाड़ियाँ वैसे मुफ्त में खड़ी हुई हैं। और भाई पुलिस वालों या फौज के अफसरान, आप किस लिए हो? आप इस मुल्क को, कौम, इस मिल्लत की हिफाजत के लिए हो, आप मेरी हिफाजत के लिए हो। आपका काम है हमें प्रोटोकॉल देना आवाम को। आपका काम ये नहीं है कि आप प्रोटोकॉल के नाम पर, मराद के नाम पर इस मुल्क के वसाइल की लूट सूट करें। आपको ये बंदरबाट बंद करनी होगी, ख़त्म करनी होगी, चाहे वो जजेस हों या चाहे जर्नैल हों। जब आप ये काम कर लेंगे जो हमारे इस मुल्क की ये शराफिया है, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप किसी भी बड़े से बड़े सियासतदान, वजीर के भी गिरेबान में हाथ डाल के उससे नाजायज़ मराद जो वो ले रहा होगा वापस ले सकते हैं। सर 3 माह का बजट जो मंजूर हुआ है अभी, क्या ये आवाम के लिए कारामद होगा? ये देखें, ये 3 माह का जो बजट है ये तो डेफिनेटली, इसमें तो जो कुछ महीने गुजर चुके हैं वो भी शामिल हैं, और आइंदा आने वाला जो जून तक हमारा प्रोग्राम है सूबाई हुकूमतों का वो भी शामिल है। तो ये आप कह लें कि रनिंग एक्सपेंसेस के लिए हैं, इसमें कोई नए मंसूबे तो आप शुरू कर नहीं सकते, ना कोई आपके पास कोई हिसाब किताब है। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि नई हुकूमत आई है और इन नई हुकूमत में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो माजी में भी हुक्मरानी करते रहे हैं। बेशक उनसे माजी में गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन अब उनको माजी का भी मतलब जो है तजुर्बा मौजूद है कि उनके साथ ज़ाती तौर पर जब एहतसाब की बारी आई तो उन्होंने क्या मुश्किलात घेरी, क्या मुश्किलात का सामना किया, कानून का किस हद तक मतलब उनको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा कानून की वजह से। तो अगर वो अपने आप को इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि जब वो इक़्तिदार से बाहर जाएं तो कोई उनके गिरेबान में हाथ डाल के चोर चोर का नारा ना लगाए, कोई उनको घड़ी चोर ना कहे, कोई उनको गाड़ी चोर ना कहे, कोई उनको लूट मार का लुटेरा ना कहे। तो उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए नेकी की तरफ, ईमानदारी की तरफ, हक के जो अवाम है वो उसको उस तक पहुँचाने के लिए अच्छे तरीके से काम करना होगा, वरना तो फिर जिस तरह आज सर देखें ना 3 माह का बजट है, 3 माह का बजट है, 3 माह का बजट है, आधा ऐसा तो गाड़ी में चला जाना, आधे से गाड़ी को टायरों में चला जाना, पीछे बचना क्या है? मैं समझता हूँ कि मतलब ये अगर देखें टेक्निकली तौर पे अगर कोई बहुत ज़रूरी है तो वो टायर डलवा लें, भी शक चले ठीक है जी, मतलब एक स्टेक पे जान की जो है बाजी
जो है उसको लगाने वाली बात होती है। सर टायर नए टायर है सर, दोबारा चेंज करवाने की क्या जहमत है इसमें? मैं वही अर्ज करने लगा हूँ कि मतलब अगर इस किस्म की बात है तो उनको अवॉइड करना चाहिए, मतलब रोक देना चाहिए कि भाई मुझे इन टायरों की जरूरत नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता आप देखें ना कि पाकिस्तान के एक एयर चीफ जो हैं वो भी हादसे का शिकार होकर मोटरवे पर सिर्फ इसीलिए मतलब जाँ बाग हो गए थे, शहीद हो गए थे कि मतलब उनकी गाड़ी के टायर जो थे मतलब वो बर्स्ट हो गए थे। तो अगर मतलब कोई वीवीआईपी पर्सनैलिटी अगर मोटरवे पे या आम सड़क पे कहीं काम के लिए जा रही है अपने फ़राइज़ की अंजामी के लिए, तो ये ना हो कि मतलब उसके टायर में प्रॉब्लम की आने की वजह से उसकी गाड़ी को नुकसान हो, वो शख्सियत जो है हमसे जुदा हो जाए, तो ये रिस्क भी हम नहीं ले सकते। लेकिन अगर ये बिला वजह इस्तेमाल ब्यूरोक्रेसी के कहने पर किए जा रहे हैं तो उनको खुद नोटिस लेने चाहिए चीफ मिनिस्टर साहबा को कि मतलब वो इसका मतलब फैसला करें कि मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, तो ये फालतू अखराजात ना किए जाएँ। मेरी तो बल्कि ये गुजारिश है हुकूमतों से कि वो जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के सियासी वारिस जनाब बिलावल भुट्टो ने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है तो वो 17 वजारतें जो वफाक के पास इस वक्त मौजूद हैं 18वीं तरमीम के तहत वो सूबों को ट्रांसफ़र होनी चाहिए थी। सर ये जो इलेक्शन हुआ, आप भी काफ़ी इलेक्शन लड़ते हैं ना, ये जो इलेक्शन हुआ आपकी नज़र में साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ है? ये देखें, जहाँ तक इसकी शफाफियत की बात है, ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें मौजूद हैं। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जैसे तीसरी मुल्क दुनिया के मतलब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अभी जमहूरियत इस कदर मजबूत नहीं हुई कि जमहूरी निज़ाम जो है वो पनप सके। लेकिन बहरहाल अब जो भी निज़ाम है हमें इस निज़ाम के अंदर रहकर, सिस्टम के अंदर रहते हुए इस सिस्टम की बुराइयों को ख़त्म करके सिस्टम की कमज़ोरियों को अच्छाइयों में बदलना है। अगर हम आज ये कहना शुरू कर दें कि जी ये ईमानदारी से इलेक्शन नहीं हुआ दोबारा, तो ये भाई दोबारा इलेक्शन तो फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है। हमें इसको कबूल करना पड़ेगा। इसकी तमाम तर खराबियों के बावजूद, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अगर ये बार बार इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि आपको ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि इसमें शफाफियत है या नहीं है, ये खुद ब खुद ही नतारा आ जाएगा। सर जब से गवर्नमेंट बनी नून लीग की और पीपल्स पार्टी के सदर साहब बने हैं जरदारी साहब, उस दिन से लेके अभी तक धमाके शुरू हो गए हैं, फिर वही सीज़न शुरू हो गए, पुरानी बातें फिर शुरू हो गई हैं। क्या रोक पाएंगे दोबारा ये? देखें, जहाँ तक पाकिस्तान की बात की, मैंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात की, पाकिस्तान बदकिस्मती से कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। हमारे कौमी सलामती के इदारे और पाकिस्तानी अवाम मिलकर इसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन चूँकि हमारे जो बैनुल अक़वामी दुश्मन हैं उनमें हमारे कुछ हमसाया नादान दोस्त ममालिक भी हैं, कुछ दूर बैठे हुए मतलब आलमी क़ुव्वतें भी हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान आलमी अक़वाम में कोई अच्छा मुकाम हासिल कर सके। ये कौमें तो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान एटम बम भी हासिल कर सके, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सके, पाकिस्तान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी भी हो। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया भर की मादनियात से, दौलत से नवाजा है, एक माला माल मुल्क है। अगर ये तमाम चीज़ें हमारी आवाम पर आराम से कोई करप्शन फ्री तरीके से इस्तेमाल होने लग जाएं तो कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके और पाकिस्तान में खुशहाली ना आए। लेकिन ये IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या इस्तेमारी कुव्वतें, ये पाकिस्तान को पहले दिन से ही कमज़ोर करने के दर पे हैं और इन्हीं की साजिशें हैं कि चाहे बलूचिस्तान में अलहदगी का मसला हो या सिंधु देश की बात हो या मतलब जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो है हमारे शुमाली इलाका जात में हमारे भाइयों को वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका हम मुकाबला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, माजी में भी आपके सामने ऐसे मिसालें मौजूद हैं कि इन्होंने कम्बैट किया है और उनको शिकस्त दी है दहशत गर्दों को, इंतहा पसंदों को। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अलाइड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हुकूमतों के साथ मिलकर ये कोशिश कर रही है और इस पर कामयाबी के साथ हम इंशाअल्लाह ताला गलबा पाएंगे इन दहशतगर्दों पर, इन इंतहा पसंदों पर, ये पाकिस्तान दुश्मन अनासर पर। हमारी पाक फौज जो है वो कुर्बानियाँ दे रही है, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे भाई शहीद हो रहे हुए वहाँ पर, ठीक है ना। इंशाअल्लाह ताला उनका खून जो है रायगा नहीं जाएगा और हम इस दहशतगर्दी से पाक मुआशरा कायम करके पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।